Global Shahin College, Bhimasandra, Tumukuru. Felicitation program to second PU toppers 2025. Yes, my dear friends, today felicitation to Global Shahin Girls students Tumukuru. For the felicitation of our outgoing batch students. So, Alhamdulillah, today we have chief guest, Janab Hamza Hussain Saheb. He is the Superintendent of Police, Commandant, 12th Battalion, Karnataka. Lecturers, professors, staff, those who are directly or indirectly involved for a successful completion of this batch. And you are all lucky to be in such a disciplined and safe area. You are all very lucky. So you can clap for yourself. हमें क्या है, अपने आप को चाहने का शुरू करना. We should like ourselves. We should love ourselves. दूसरों को करने से we should love first ourselves. Love का तो क्या, we should love our health, not outward appearance. One has to be healthy. If you are healthy, you can contribute a lot to the society, to the state and to the nation. If you are not healthy, so you will become burden to the society, burden to parents, burden to society. So if there is any deformity or difficulty by birth, nothing can be done. Society is there, government is there, parents are there, everybody collectively they will take care of you. So health is wealth. So if you are healthy, you can think, you can read, you can write, you can visit, you can talk. Otherwise, that
unhealthiness will take your lot of time, your energy. But what I have noticed, there are many people or officers, businessmen, in spite of their deformity or unhealthiness or weakness, they have crossed all those challenges and they have done remarkable achievements in the society. There is one IAS officer, she doesn't have eyes, आंखें नहीं दिखती, but she has completed IAS, she has achieved. These are all just examples. तो एक अपने खाने पीने के बारे में, दूसरा अपनी सेहत के बारे में, कितना हो सकता है उतना चलते फिरते काम करो, सेहत ऑटोमेटिकली अच्छी रहती है। और तीसरा, अपना वक्त कहीं जाया नहीं करना। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम एनीवेयर। शादियां, बारातां, दावतां, बिरयानियां, you should not waste. Either you should spend that quality time in reading or keeping up your good health, or you should be an asset to your parents. घर में आप माँ बाप की खिदमत करो, घर में काम करो, या पढ़ाई में वक्त लगाओ, या इबादत में वक्त लगाओ, या सेहत बनाने में वक्त लगाओ। ये चार छोड़ के कहीं भी अपना वक्त जाया नहीं करना, especially this. How many of you doesn't use mobile? कौन नहीं इस्तेमाल करते मोबाइल को? आज तक मोबाइलिस्ट नहीं पकड़ेगा तो कौन? कौन भी नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? मुझे डाउट आ रहा है, अब मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं की? सो देयर इज नोबडी इन प्रेजेंट सोसाइटी के मोबाइल नहीं यूज करते। सो उसके प्लस माइनस सम अदर टाइम अफजल भाई अगर एक सिचुएशन बनाएंगे तो आई विल कम एंड टॉक अबाउट सोशल मीडिया, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, उसके बारे में एक लेक्चर आपके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। एंड women are the most vulnerable to the cyber crimes. जेंट्स को ज्यादा धोखा नहीं देते, पैसे में दयाल थे, बट विमेन, औरतें, औरत बच्चियां जो है, ये बहुत ही आप उसमें फंस सकती हैं या प्रॉब्लम में आ सकती हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिफोर टॉकिंग और चैटिंग और डाउनलोडिंग और opening any link or any unknown apps. Avoid, इससे कुछ भी नहीं होता, तुम्हारा पूरा वक्त बर्बाद हो जाता। सो अभी आप पीयूसी में आए और फिर गेस्ट आने वाले हैं, कर बोले मुझे ये फंक्शन में, बयाना में, स्पीच में उतना ये नहीं है। आई एम ए ट्रेनर, आई ट्रेन पुलिस ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स एंड DSPs, कमिश्नर्स और इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। आई बिलीव इन ट्रेनिंग, नॉट इन लेक्चरिंग। लेक्चरिंग, भाषणबाजी से कुछ नहीं होता। तो नाउ यू प्लीज इंटरैक्ट विथ मी। आपके दिमाग में क्या है, क्या करना चाहते हैं, व्हाट कंफ्यूजन्स यू हैव, व्हाट डिफिकल्टीज यू हैव, you discuss with me, you ask me, we will have interactive session. Today I have not come here to give only lecture to you or bhashan to you. So let us interact. I have, मेरे पास, मैं बेलगाम में SP था इससे पहले, वहां पे I had 125 women officers. उसमें बहुत सारी हमारे मुस्लिम बच्चियां भी थी। नॉर्थ कर्नाटका में एक कल्चर अच्छा है, बहुत ज्यादा दीनदारी में जाते नहीं हो। तो पुलिस ऑफिसर्स बन सकती हैं, IAS ऑफिसर्स बन सकती हैं। पुलिस ऑफिसर्स कई को बोल रहा हूं तो देयर इज 30% रिजर्वेशन फॉर विमेन। ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 30% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ। ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ? ಯಾರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ। मैं वहां जाता हूं, अब जरी देर में तुमने नहीं आता, कई को नहीं आता मतलब ना, दूसरे स्टेट से, आंध्रा, ओके। सो यहाँ पढ़ के फिर तुम्हें वापस चले आते हैं क्या? यहाँ चलते हैं, बट लर्न ए लैंग्वेज,
always it is better because Telugu and Kannada lipi is same, script is same. Okay, it is not that important. You can make your career there also. So what I am telling is, you have golden time of this summer vacation. How you are spending this vacation? Can anybody? आपका क्या नाम? फातिमा, stand up. How you are spending your summer vacation? आराम कर ले को. कितने दिन से प्रेशर था? कितने दिन हुआ प्रेशर रिलीज हो को? 1 month. अभी रिलीज नहीं हुआ? रिलीज होगा. कितने दिन की छुट्टियां हैं तुम्हारे? हाँ. What you have planned? NEET? Commerce. हाँ. So how will you utilize your this summer holiday? होना कर को ही 1 महीना चले गए ऑलरेडी. ओके, गुड. नेक्स्ट मैडम. हाँ बोलिए. बेसिक कंप्यूटर क्लासेस. ओके, ये उनको दे सकते हैं. ये I told you I am a trainer. I am not a professor or lecturer. I see in your eyes and I will come to know what you are thinking. Yes. इकरा खान बोलिए. सिर्फ ये बोलना कर को नहीं. What difficulties or what confusions you have? आगे क्या करना चाहती हैं ये बोलो. Advocate. Very good. What you have studied here? Commerce. देखिए, इट इज वेरी गुड फील्ड. आई वॉज ऑल्सो ए लॉ ग्रेजुएट. पुलिस में आके निकल गया मैं यहाँ छोड़ के. माई डॉटर इज ए लॉयर एंड लॉ में क्या है, कॉमर्स में उनको इंडस्ट्रीज में, आईटी कंपनीज में बहुत स्कोप है. वेरी गुड. प्लीज सिट डाउन. और समर शादी? No, your sister is studying LLB. What are you learning in this 3 months? Not decided. By the time you decide, 3 months will pass. Please sit down. Next. I see. Very good. Our summer? What coaching? ठीक है, कंप्यूटर नहीं सिखाते हैं स्कूल में. कंप्यूटर भी कोई सीखने की चीज है क्या? इसकी भी ट्रेनिंग मिली थी मगर तुमने आता नहीं. फिर who taught you this? अच्छा, आई एम जस्ट जोकिंग. देखो, अगर तुम ना ये जज्बा रहा सीखना, कुछ भी करना का, तो अपने आप सीख लेते थे ना. वो सीखो ऐप है मोबाइल में, बहुत कुछ है नहीं. डज एनीबडी यूजेस सीखो ऐप? नहीं. ओके, प्लीज सिट डाउन. गुड. ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾ ಹೇಳಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ಹಾ, ಎಲ್ರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, BCA ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ, ಸಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಮಲ್ಕೊಂತೀರಿ. ओके, वेरी गुड. क्लैप्स फॉर हर. तो झूठ बोलना आसान है, सच बोलना मुश्किल है. अरे सो हमारी बच्ची सच बोल पाए. तो अबाउट आर आई एम टेलिंग मोर अबाउट पुलिस, बट ऑल फील्ड्स आर गुड. इवन इफ यू डू एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर करके मैं खेती बाड़ी करता हूँ तो वो भी अच्छा है. कौन सा भी काम करो, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, पूरे तन मन के साथ करो, 100% यू विल हैव सक्सेस. अब जैसा आप लोग यहाँ पे सक्सेस हुए नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं
तुम्हारे सर का पास नहीं हो पाए कितने के बच्चे, कितना सब ये बार परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज 70 69, so 31% students have failed, so you are all lucky. और I congratulate all those who have achieved top positions, and जो नहीं अचीव कर पाए, जो पास हो कहीं, उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई बिलोंग टू 35%. मेरे साथ कितने जने हैं? हाँ, एटलीस्ट वन फ्रेंड इज देयर. व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर यूपीएससी एंड केपीएससी? क्वालिफिकेशन क्या रहना? ग्रेजुएट. परसेंटेज कितना रहना? हाँ, यस, कितना रहना परसेंटेज? अबव 50, 60, 70 भी हो सकता है. देयर इज नो परसेंटेज. तुम्हें पास होकर रहना स्वतः. तुम्हारे वहां केपीएससी यूपीएससी में हाउ यू राइट ने, वो मार्क्स के ऊपर तुम्हारे जॉब्स मिलते हैं तुम्हें. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टेल इज, जो लास्ट बेंचर्स रहते हैं, जो अब यहां बराबर नहीं पढ़ते, वो आगे सक्सेस हो जाते. सो मायूस होने की जरूरत नहीं है, अभी वक्त बहुत है. पीयूसी में मैं बेंगलोर में काम को जाता था. क्या तो आई वॉज स्टडिंग इन सेंट जोसेफ्स कॉलेज. वहां पे खर्चा ज्यादा था, तो मेरे पेरेंट्स को मैं बोझ नहीं बनना चाहता था. दिन में 4 घंटे काम किया जाता था. वहां एमजी रोड में एक शोरूम था तब, जमाल्स कर, तुम्हें शायद तुम्हारे जमाने का शोरूम हो, अब नहीं है. 1 घंटे को 10 रुपये देते थे. कितना? 10 रुपीज पर आवर. 4 बजे से रात के 8 बजे तक काम करता था. सो आई यूज्ड टू गेट पर डे 40 रुपीज. सो पर मंथ कितना हुआ? कॉमर्स स्टूडेंट्स 1200. 33 years back, 1200 rupees was like 1 lakh rupees. So I used to take care of myself, my books, my studies, my college fees and transportation. और जो भी एक्स्ट्रा सीखने का, उस वक्त टाइपिंग सीख लिया तो बहुत बड़ी चीज थी. हाँ, तो वहां से टाइपिंग सीखे, ड्राइविंग सीखे तो बहुत बड़ी बात. उसको दीज आर ऑल स्किल्स, लाइफ स्किल्स. सो यू शुड लर्न. स्विमिंग, कितने बच्चे को स्विमिंग आता है? कहां? स्विमिंग पूल में सीखे, बॉडी में सीखे, कहां सीखे? वेयर डिड यू लर्न? स्विमिंग पूल. वेरी गुड. यू वेरी गुड. हमारे टाइम में स्विमिंग पूल नहीं था. बीजापुर में ताज बॉडी करके एक बड़ी बॉडी थी. हमारे फुप्पू ले जाकर रस्सी बंद को ढकल डालते थे पानी में, वैसा. सो why I am telling all these things, please don't waste your valuable time. Summer vacation is such a nice time. Visit people. अपने गांव को जाओ, नानी के गांव को जाओ, दादी का गांव को जाओ, स्टूडेंट्स को मिलो, ऑफिसर्स को मिलो, लोगों से डिस्कस करो, तुम्हें ये कैसा करे, ये कैसा करना, करके बात करो और स्किल डेवलपमेंट कर लो. जैसा मैं बोला नहीं अभी, स्विमिंग, ड्राइविंग, कंप्यूटर्स और वट एवर स्किल, और लर्न ए न्यू लैंग्वेज. ये समर वेकेशन में तुम्हारा कुछ तो कुछ अचीवमेंट रहना. और दूसरा, विल गो स्टार्ट. किसी को पूछना है पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में? पुलिस में कितने लोग जमना चाहते हैं, ये बोलो, या क्यों नहीं जमना चाहते? यस प्लीज. Yes, yes. Assalamualaikum. My name is Mumtini. I want to know IAS civil IAS civil service. service. Good. You complete your graduation and start preparation from now itself. तुम्हारी जो पीयूसी की या कॉलेज की जो स्टडीज के साथ साथ 1 घंटा 2 घंटे यू स्टार्ट स्टडीइंग नाउ. क्या स्टडी करना? जनरल नॉलेज. जनरल नॉलेज कहाँ मिलती है?
मोबाइल में है? हाँ, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू करके एक मैगजीन आती है, हमारे जमाने में थी, आई होप इट इज देयर स्टिल। हमारे जमाने में वो एक ही थी, अब बहुत सारे रहते। यू विजिट सेंट्रल लाइब्रेरी समटाइम, बस स्टैंड के बाजू में है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हो, बैको बच्चे, मर्द बच्चे सभी पढ़ते रहते हैं। पुलिस कांस्टेबल्स हैं, जो गर्ल कांस्टेबल्स हैं, बॉय कांस्टेबल्स हैं, उन्होंने भी जाको वहां पढ़ते रहते हैं फ्री टाइम को। क्या कहते हो, यू हैव ऑल द बुक्स देयर, सो गुड, आई अप्रिशिएट यू। स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ इटसेल्फ, कीपिंग योर गुड हेल्थ आल्सो। नोबडी शुड लूज हेल्थ, ओके, गुड। अगर कुछ भी तुमने और जानकारी होना तो आपके सर से बोलिए, अफजल सर से, आप उन्होंने मुझे कांटेक्ट कराते हैं। यस, ओके, कभी करियर गाइडेंस का भी सेपरेटली करेंगे। ओके, राइट। Hussain Saab, Commandant 12th Battalion KSRP, Tumakuru joined the Karnataka State Police Department during the year 1995. Prior to joining the police department, he successfully served as Kannada news reader from 1992 to 2002 in Doordarshan Kendra and Akashvani Bengaluru. He has been rendering excellent service as announcer of state and national level sports and events conducted by Karnataka State Police and the Government of Karnataka. He has the rare distinction of presenting programs in Kannada, Hindi and English languages and is appreciated by heads of department and also by the government. The concerned organizers have praised his version of representing during the world famous Dasara procession in Mysore as one of the best performers. President's Meritorious Service Medal for Outstanding Service in 2018. Honorable President's Distinguished Service Medal was honored to him on the occasion of 76th Republic Day 2025 for the development of newly created force or battalion of 12th Battalion KSRP Tumkuru in 2023-24 and for the duty performed by him in maintaining of law and order in the state and for rendering life at risk of duty during COVID-19. Sri Hamza Hussain has been instrumental in the successful completion of 10 issues of Karnataka State Reserve Police Of joy and celebrate our seniors' achievement, looking forward to the new opportunities that lie ahead. Jazakallah khairan. Our gratitude and appreciation to our seniors. We request our HOD Tausia ma'am to announce the toppers and for the prize distribution to announce the toppers of Global Shahin College. First of all, I congratulate all my students, science and commerce students, by their struggle, by their effort. They have gained a very good result. So congratulations once again to science and commerce both the students. So I would like to welcome our students. So give a big round of applause. Fatima Farnaz with 575.96%. Please to come on the dais. Parents please. So she has secured computer science 97. Asiya Kauthar with 563.94%. Chemistry 95, Maths 90, Bio 94. Aisha. Hindi 92, English 94, Physics 95, Chemistry 94, Maths 90, Bio 96. 561 with 94%. Ina Nurai. 88. Students, please welcome the 88, Accountancy 88, Computer Science 90. Next, Ikhra Khan. Next, Ikhra. First language 90, English 84, Economics 96, Business 98, Accountancy 86, Computer Science 93.
Physics 94, Physics 83, then Maths 94. Ready. Parents, please. Please. उनका हो तो बच्ची अब ले ले जवेरी ऐसा नेक्स्ट हाजिरा सादिया 5 Karen. Madi Hiram. Ali Afifa. रहमान रहीम ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Really today is a very happy and remarkable day in history of Global Shaheen College. On this happy occasion, I once again welcome Janab SP Hamza Hussain Sahab. Already our students are, they have read their achievements. Alhamdulillah, it is a proud moment for us. It's like a jewel in the sky. From our community, we should be proud and really I am speaking, it is an honor for us that today Janab Hamza Sahab here, and I have visited his battalion day before yesterday, and really myself I feel proud that he is from our community. One is from the community and he has proven he is one of the best officer in Karnataka. As everyone knows that he has got President Award. It's not so easy to get President Award. Such a wonderful personality is with us today. Really, it is our honor, a privilege and proud moment for us. The intention of calling such a wonderful personality here is to inspire you people that we expect at least few people from you to reach his rank by seeing him, by getting his, speech, good ideas, and also he has promised me that he will guide our students. Inshallah, we will have a tour to 12th Battalion near to Koradgere. So very close to us. Inshallah, we will plan team-wise 50 students a day to see how police officers will be trained. See, Hamza Hussain Sahab, he is a SP level police officer, but he trains UPSC officers, KIS, UPS, IS officers, because he may be passed UPSC before he is designated as a SP or deputy police superintendent. He should go through vigorous training,
And it is a proud moment for us that he is training such a wonderful personalities to serve our community. Even though he passed UPSC, he cannot join as a superintendent of police unless otherwise he has been trained by such a wonderful personalities like Hamza Hussain Sahab. Is it not? It is a really proud moment for us. Alhamdulillah, really I am very happy that I have seen the whole, it is like a village. It's almost like 150 kilometers diameter area. You can see he is the commander, he is the owner, and he is the VIP of that whole village. Around 1,000 police officers are there and 1,000 families, around 3,000 to 4,000 people are living in that commandment. So under his leadership, many of us officers, they are prepared and they are serving the country and also to our Karnataka police force. Sir, once again, sir, from the bottom of my heart, I welcome you for this wonderful facilitation program. It gives me immense pleasure, sir, on these happy occasions, and also being an awardee of President Award of this country. I welcome you to honor, sir, on these happy occasions. Please, we will. जो आला नंबरात से जहाँ पर लड़कियाँ कौन सी लैंग्वेज में होना? क्या मैसेज एजुकेशन शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी. आज का हमारा पहला प्रायोरिटी जो है, स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी में, एजुकेशन पहले प्रायोरिटी पे आना. ठीक है, तो एजुकेशन रहा तो क्या सही है क्या गलत है हमें पहचान सकते हैं, पढ़ सकते हैं. इतने सारे कानून बन रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं, ये सब समझना का तो एजुकेशन है. कोई दूसरा बोल रहा है, वो बोले सो सुन को हमें काम नहीं कर सकते. तो एजुकेशन रहे तो रोजी मिलती है, जॉब्स मिलते हैं, या जो भी काम कर रहे हैं हमारे बच्चे बच्चियां, उसमें उनको तरक्की होती है. देखिए, गवर्नमेंट्स बैको बच्चों को, गर्ल स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे फैसिलिटीज क्रिएट किए हैं, और उसमें ये ग्लोबल शाहीन स्कूल आज तुमकुर में नहीं, पूरे यहाँ साउथ कर्नाटका में इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कूल करके बोल सकते हैं. क्योंकि थरोली दे कॉन्सेंट्रेट ऑन एजुकेशन विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस लाइक सोशल मीडिया, मोबाइल्स, इसका सब कम है यहाँ इस्तेमाल. तो इसकी वजह से इस साल यहाँ पे इतना अच्छा पीयूसी में रिजल्ट आया है. 97% एक बच्ची लेना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. दैट टू इन माइनॉरिटी कम्युनिटी एजुकेशन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता. तो यहाँ पे ग्लोबल शाहीन जैसे स्कूल्स यहाँ यश ने हर जगह होना, और इसमें अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे जॉब्स मिलते हैं, अच्छे जॉब्स मिले तो इकोनॉमिक लाइफ अच्छी होती है. तब जाके नेक्स्ट हमें सोशल लाइफ के बारे में, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, एक अच्छे सिटीजन होने के बारे में अच्छा एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं. आपने एक बात यहाँ पर ये भी कही कि लड़कियों को खासतौर पर मुस्लिम लड़कियों पुलिस डिपार्टमेंट में भी आना चाहिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट एक सेफ डिपार्टमेंट है. क्या कह रहे हैं मुस्लिम लड़कियों का? देखिए, लॉ एनफोर्सिंग करती है पुलिस, कानून बनता है विधानसभा में, रूल्स आते हैं गवर्नमेंट से, अल्टीमेटली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं पुलिस वाले. उसमें भी क्या है, अभी 30% रिजर्वेशन औरतों के लिए है, बच्चियों के लिए है. तो इसमें कोटा है, तो हमारे कम्युनिटी के बच्चे भी अच्छा पढ़ लिख के, अच्छी तैयारी करके पुलिस डिपार्टमेंट भी आना. वहाँ आए तो क्या होता है, वी कैन डू जस्टिस टू द सोसाइटी. तो इसमें अभी इतना सारा रिजर्वेशन है, इसका फायदा उठाना. शर्म की वजह से पीछे हटते हैं, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट बोले तो दूर हट जाते हैं. डॉक्टर इंजीनियर तो बन रहे हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट से दूर हैं. आपको लग रहा है? हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट से उतना क्या है, मेन फिर भी मैं बोलता हूँ एजुकेशन ही है. अगर जिसके पास एजुकेशन रहता है उन्हें डरने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तो कानून को जानती, सही गलत क्या है उसके हिसाब से ये करते हैं. बच्चे पढ़ लिए, उसमें भी एक औरत बच्ची पढ़ ली तो एक पूरे खानदान को पढ़ाई सकता, क्योंकि तो आने वाले नस्ल अच्छी एजुकेटेड हो जाती है.
और अभी देखिए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में इतने सारे विमेन ऑफिसर्स हैं और उनके लिए विमेन के लिए सेफ्टी के लिए विमेन पुलिस स्टेशन हैं। यहाँ तक के KSRP कर्नाटका स्टेट रिजर्व पुलिस में भी बटालियन में 2 कंपनियां हैं, 3 कंपनियां हैं अभी। बेंगलोर में 2 कंपनियां हैं और बेलगाम में है। तो औरतों के लिए, गर्ल्स के लिए, बच्चियों के लिए ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पे वो नहीं कर सकते। और मेरा मानना है, देखिए अभी PUC के रिजल्ट्स देखिए, आप SSLC के रिजल्ट्स देखिए, फर्स्ट रैंक आने वाले या हाईएस्ट स्कोर करने वाले औरत बच्चियां ही, गर्ल स्टूडेंट्स ही हैं। मगर वो पढ़ाई तक तो है, ठीक है, बाद में जॉब्स में आके वो पीछे रुक जाते हैं क्योंकि माँ बाप की जिम्मेदारियां होती हैं, उनको शादी करके देना या उनका लाइफ सेटल होना करके। तो ऐसे सोच में क्या होता है, उन्होंने करियर को छोड़ देते हैं। तो अभी इसके लिए क्या है, यहाँ करियर गाइडेंस, करियर काउंसलिंग, ये सबकी यूज करना, और अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स हैं और अमीन मुदस्सिर जैसे करियर गाइडेंस काउंसलर्स हैं, उनके जरिए से ये बच्चियों को बात कराए तो उनको एक रास्ता मिलता है। ये गाइडेंस सिर्फ बच्चों को ही नहीं, पेरेंट्स को भी जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हमारे अनएजुकेटेड भी हैं, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो उसके बीच में भी यत्ता पढ़ा रही बच्चों को, तो इट इज ए गुड डेवलपमेंट। अफजल शरीफ साहब यहाँ पर जो है रात और दिन खिदमत करते हुए आ रहे हैं जौनपुर में, तो आप भी बहुत दिनों से उनको देखते आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अफजल शरीफ साहब ग्लोबल शाहीन ये कॉलेज, ये औरत बच्चियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। क्यों? पेरेंट्स आर फियरलेस नाउ, बिकॉज यहाँ पे ग्लोबल शाहीन में बच्चे पढ़ लिए या बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो हमारे बच्चे वहाँ पे महफूज हैं, सेफ हैं, अच्छे बाइज्जत अच्छी पढ़ाई होती है कहने का एक भरोसा आ जाता है पेरेंट्स को। आज यही चीज हर जगह कमी नजर आ रही है, क्योंकि बिगड़ने के रास्ते बहुत हैं। सोशल मीडिया, उसमें क्या गलत है क्या सही है ये देखना, गाइडेंस होना, और टीचर्स का और पेरेंट्स का 24 घंटे बच्चों के साथ रहना, उनके ऊपर एक अच्छा सा एक गाइडेंस बनना देना, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो है मैं इस साल जो बच्चे पास आउट हुए उनके लिए मैं मुबारकबादी पेश करता हूं, और यहाँ पर आकर देखने के बाद मुझे पता चला कि माशाल्लाह यहाँ पर भी हमारे बच्चे जो हैं 97% लेकर हैं। ये बहुत ही निहायत ही खुशी और मुसरत का मौका है हमारे लिए। और हमारे शहर में जो है ना, इतना प्यारा एक इदारा चल रहा है, माँ बाप भी खुश नसीब हैं। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं एक सेफ़ और सिक्योर्ड माहौल के अंदर, एक दीनी इदारे जैसे माहौल में माशाल्लाह बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से अफजल शरीफ साहब को और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को और उनके माँ बाप को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आइंदा चलकर भी वो अच्छी कोशिश कर रहे हैं, अच्छा पढ़ाएंगे करके उम्मीद है। अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी दुआ है कि बच्चे और कामयाबी हासिल करें, इस मौके को इस्तेमाल में लेकर अच्छी अपनी लाइफ बनाएं और अपना करियर संवारें। एजुकेशन जो है, आपको तो मालूम है हमारे कौम में जो है ख़ास करके औरत बच्चियों को एजुकेशन में पढ़ाना इतना मुतवज्जे नहीं होते इस तरफ, क्योंकि अब यहाँ पर तुमकुर में एक पहला ऐसा इदारा है जो शाहीन ग्लोबल कॉलेज जो यहाँ पर है, इसमें हर कोई आसानी के साथ अपनी बच्चियों को, औरत बच्चियों को डाल सकते हैं, क्योंकि एक सिक्योर और सेफ्टी का माहौल है यहाँ पर, और शहर से नज़दीक है और अच्छा माहौल है माशाल्लाह। अच्छे टीचर्स, फैकल्टीज़ वगैरह सब बहुत अच्छे अंदाज में चल रहा है, कॉलेज भी बहुत अच्छे अंदाजे पे चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियाँ जो है इस मौके को इस्तेमाल करें, और आइंदा डिग्री वगैरह जो भी है पढ़कर मिनिमम हमारी कौम में जो एक डिग्री में आ जाएं, डिग्री तक जो एजुकेशन को लेकर आएँ। माँ बाप में भी हमें भी चाहिए कि एक अवेयरनेस क्रिएट करें, क्योंकि ख़ासकर औरत बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो PUC को ख़त्म कर देते हैं हमारे यहाँ। तो ऐसे इदारे होने के बावजूद हम इन इदारों का इस्तेमाल करें और हमारे बच्चों को जो है मिनिमम जैसी भी हो, जो भी हो डिग्री, एक डिग्री कराएं, BSc हो, BCA हो, कुछ भी हो, मिनिमम एक डिग्री हो जाएगी तो उसकी लाइफ के लिए एक जरिया बन सकता है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ। जी बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी सेकेंड ईयर पास हुई है इधर। SLC के बाद सेफ ढूंढा गया तो मैं ग्लोबल शाहीन, उसमें बच्चे सेफ रहते हैं भाई को बच्चे बोल को, इसमें एडमिशन कराया। एडमिशन करना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी अच्छा मार्क्स लेकर पास हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह 89 लेकर पास हुई। क्या खुशी कैसे जाए? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हुई। अब इसके बाद भी जमेंगे तो यहाँ जरा मैं क्या पढ़ाना चाहते हैं? BCA में SSIT में
जमा करे वहाँ पे। एडमिशन होगा, आगे पढ़ा रहे हैं। इंशाल्लाह पढ़ा रहे हैं। खुशी हो रही है हम ना, मेरी बेटी 86% से पास हो गया है सेकेंड ईयर पीसी। और ग्लोबल शाहीन जो कॉलेज है जो बैको बच्चों के वास्ते सेफ है और यहाँ का सिस्टम और निज़ाम भी बहुत अच्छा है। अफजल भाई भी बहुत अच्छा निज़ाम करके हैं, अफजल शरीफ साहब, और कम पैसा में यहाँ एजुकेशन हो रहा है हमारे बैको बच्चों का, कम पैसा में। आप तुमकुर में हाँ, तुमकुर में रहते हैं। क्या काम करते हैं? हमारा वर्कशॉप वेल्डिंग का है। आगे क्या पढ़ाना चाह रहे बच्चों नेक्स्ट अभी एडमिशन कराना है। जी बताइए सर, आप कहाँ रहते हैं और क्या काम करते हैं? हमें दाना पैलेस मेलाकोटे रोड में रहते हैं। हमारे SS ऑटो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हमारा यूपी गेट चेक पोस्ट। आपकी बेटी भी वेल्डिंग जी पढ़ रही है मेरी बेटी, बताइए फर्स्ट ईयर पास हुई। हाँ, अब नेक्स्ट यहाँ से सेकेंड ईयर को डाल रही हूँ। कैसा है यहाँ? पर माशाल्लाह अच्छा है, अच्छा से अच्छा है यहाँ, क्या भी ऐसा क्या भी नहीं है। सेफ्टी है, फीस की इंशाल्लाह बहुत कम है, बहुत कम है, सबसे भी यहाँ बहुत कम है फीस। मिडिल क्लास को क्या पढ़ाना चाह रहे बच्चों? इंशाल्लाह कितना परसेंटेज रहा और यहाँ की पढ़ाई कैसी रही और आइंदा क्या करना चाहिए? एक साथ बुलंद आवाज से। Myself Fatima Farnaz. I am from second PUC CEBA from Commerce Department. I have studied here only in Global Shaheen College. I would like to thank for God first of all for giving me this knowledge and this position, and secondly I would like to thank my parents and my dear lecturers for supporting me in throughout my journey. And What is your percentage? my percentage is 96%, 575 marks. इस परसेंटेज के साथ कामयाबी हासिल की है, क्या उम्मीद थी आपको कि जब आप यहाँ पर बच्ची को भेजे? हमारा ये मानना है कि शाहीन पीयू में अच्छी तालीमात और पाबंदी के साथ बैकू बच्चों की रहनुमाई करते हुए हमारे अफजल साहब ने ये कॉलेज बनवाया तुमकुर के अंदर। इनका शुक्रगुजार हूँ मैं। उन्होंने शादी महल बनाना करके थे, उन्होंने कुर्बानी दे के बच्चों के लिए, हमारे कौम के लिए बहुत मेहरबानी किए हैं। इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और यहाँ के टीचर्स का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेहनत लगाकर हमारे बच्चों को पढ़ाए और इतना मार्क्स आने में इनका ही ये कामयाब का नतीजा है। और उसके बाद मेरी बेटी का शुक्रगुजार बनता हूँ कि मेरी बेटी आज ये मुकाम पर पहुंची है, ये स्टेज भी दिलाया है मेरी बेटी ने। शब्बीर अहमद मेरा नाम है, टीपू ताज टी होटल है सदाशिव नगर में। मेरा नाम सलमा है और मैं CBA कॉमर्स कोर्स ली थी। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड देन माय सेकेंड ईयर को मेरे जो पेरेंट्स हैं बहुत सपोर्ट करे पढ़ाई में। एंड देन मेरे लेक्चरर्स बहुत सपोर्टिव थे, हर एक डिटेल से समझाते थे, बहुत अच्छा समझ में आता था। देन फुल सेफ्टी भी है यहाँ पे। देन परसेंटेज क्या रहा आपका? मेरा परसेंटेज 90%। एंड देन मैं सजेस्ट करती हूँ ये कॉलेज अच्छी है गर्ल्स के लिए, सेफ्टी सिक्योरिटी। देन आई एम टेकिंग डिग्री, आई एम जॉइनिंग इन SSIT, आई एम टेकिंग CBA computer filling applications, and then I interested in computer fields. थैंक यू। नाम आपका, क्या काम? मेरा नाम महमूद शरीफ है। हमारा MS मैरिज लिंक्स करको अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह हमारी बच्ची यहाँ 87% काटी अल्हम्दुलिल्लाह। कॉलेज बहुत ज़बरदस्त है, हर कौम में कॉलेज ऐसी रहना हमारे कौम के वास्ते बहुत बेहतरीन कॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह। ना नहीं थी ऐसी कॉलेज? तुमकुर में ऐसी कॉलेज नहीं थी। हमारे बच्चों को, 2 बच्चों को नहीं पढ़ाए, SLC पढ़ो छोड़ डाला है, ये बच्चे कुछ पढ़ा नहीं सो क्योंकि तो ऐसी कॉलेज रहने में से ऐसी कॉलेज डिग्री तक MBBS तक है तो भी कंटिन्यू करती है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज़। हाँ, सब पूरे मुसलमान से दरख्वास्त है वो यही कॉलेज में पढ़ा दे सभी। और बहुत हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। नीट या MBBS इंशाल्लाह। MBBS अच्छा नंबर आ लिया तो MBBS, ये तो BSc B.Ed टीचर, बेहतरीन कौम की टीचर। क्या रोज आना जाना करते थे या रहकर पढ़ाई करे, क्या करे? रोज आना जाना था। हाँ, हाँ। तो सहूलत थी यहाँ पर? कितना परसेंटेज हुआ? 87। क्या बनना चाह रहे हो? इंशाल्लाह डॉक्टर। डॉक्टर। इंशाल्लाह।
और कितना परसेंटेज हुआ सब्जेक्ट वाइज, क्या रिजल्ट है और क्या कहना चाह रहे हैं कॉलेज के बारे में? I am Asfiya Kausar and I scored 563 in my board examinations and I am willing to become a doctor. व्हाट इज योर परसेंटेज? 94 percentile. सो कैसा रहा है फिर पढ़ाई वगैरह? It's good, especially for the girls' education and for the Muslim girls. It's very good, and they are preparing for NEET and board exams both. So it's a very good college. तो क्या एक्स्ट्रा कुछ क्लासेस वगैरह लेते थे, कैसा पढ़ाते थे? Yeah, they were taking extra classes from during our board exams. They were taking from 8:30 to 6 o'clock. बेटी मैं आसफिया कौसर की वालिदा हूँ। मैं इस कॉलेज में बात करना चाहती हूँ। वो फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल को अवॉइड किया ना, मुझे बहुत अच्छा हुआ। जो बच्चे दूसरे तरीके से भी यूज कर ले सकते हैं, मोबाइल अच्छे तरीके से भी यूज कर लेते हैं। देखो इधर मुझे बहुत ही खुशी हुई, महसूस हुई मेरी बच्ची इस लेवल पर काबिलियत यहाँ पे लाई ना, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं इस कॉलेज में भी जो पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं उनको भी दरखास्त करती हूँ कि यहाँ पे एग्जाम आने की कोशिश करो। यहाँ पे बहुत ही इंडिविजुअल केयर लेते हैं यहाँ पे पेरेंट्स, टीचर्स सब भी। इसलिए उनके अब्बा बिजनेस करते हैं और नो भी बच्ची को एनकरेज करते थे। यहाँ पे कॉलेज पर भी हमें बहुत ही एनकरेज करती हैं ये बच्चों को जमाने के लिए। बच्ची को डॉक्टर बनाना चाहते थे हम, वो कैसीट भी लिखो है, कौन सा लेती है वो बच्ची, उस पर हम ये करते हैं। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sabah Fatima. I have taken PCMB in my PUC course and I have scored 561 also out of 600. So first of all, I like to thank Afzal Sharif sir, the managing director of the Global Shaheen College, for providing such a good environment which helped me to score good in my academics. And we used to follow the Shaheen Bidar's schedule, and every Monday we used to have mock tests, and Friday we used to have theory test, which boosted my grades and which helped me to build my confidence and be stress free during my exams. And I like to thank my teachers. I am very lucky that I was under the guidance of the well-experienced teacher who guided me in every aspect and motivated me, and the result that I was standing behind. My father, he is a businessman. My mom, yes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Arfa Sharif and I have taken PCBH science stream and I have scored 85% in my second PU final examination. So first of all, I would like to talk about the management, and firstly, alhamdulillah, I would like to thank Janab Afzal Sharif sir, who has provided us excellent infrastructure which has helped us a lot to gain excellence in my academics. Nextly, also I would like to thank our principal Iftikhar sir, who has provided all the necessary facilities, and he is a kind and cooperative towards his students. And nextly, I would like to thank my faculties. We are very much lucky, alhamdulillah, to have such a supportive and friendly faculties, and we are very grateful to have such experienced faculties in each subjects. Where are you from? I am from Tumkur. What is your father? My father is a auto driver. So you feel that your background is poor, and how they help you in education, in fees and scholarship? Yeah, they have. I've scored kind of 82% in my school. I was from Maulana Azad. I've requested for in low fees. So they have given me a task that I should score 92% in my first year, and alhamdulillah, I got 92% in my first year. So they provide free Yeah. education? No, low budget, in low fees. Thank you, sir. Warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aisha Firdaus. I have studied my second PUC from Commerce in the Global Shaheen Institution. Alhamdulillah, I have secured 88% from
with 528 marks out of 600. Alhamdulillah, I am happy with my result, and all our teachers have guided us very well. Especially our managing director Janab Afzal Sharif sir, principal sir, our ex-principal Janab Afzal Sharif sir, Anwar Sharif sir, and our lecturers. Everyone guided us with their honorable moments, and they give us their very expensive time. So I thankful to everyone and my friends who cordially guide me in such a toughest moments. Thank you. I thank everyone. Life. Yes. Warahmatullahi. I am Alia Khanam, the daughter of Barakullah Khan and Husna Khanam. I am the student of Global Shaheen. I studied second year CBA from Commerce Department. Alhamdulillah, by the grace and blessings of Almighty and with the support of my parents and also the guidance of my lecturers, I secured 94% in my second year examination. By talking about the management, I would like to thank our Managing Director Janab Afzal Sharif sir, who have provided an excellent environment and also an excellent infrastructure for us, which helps us to achieve excellence in our academics. And also by talking about the BIDAR, the strategic schedule of BIDAR helped us to practice on a daily basis and to retain whatever we have studied and also to revise on regular basis. The most important, to manage the time during the examinations. By talking about the faculties, as a student, we are very lucky to have an experienced teachers in each subject. They are very friendly and supportive. They clarify our doubts. They don't hesitate. We also not even hesitate to ask anything. So I am really grateful to be this part of this institution. Thank you all. Jazakallah. tumkur ने एक बार फिर बेस्ट रिजल्ट्स दिए हैं, तो क्या रिजल्ट्स रहे हैं, कितने बच्चे पीयूसी सेकंड में इम्तिहान में हिस्सा लिए और क्या ओवरऑल रिजल्ट्स क्या रहे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का शुक्र एहसान है, इस साल का रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन है। अगर हम पूरे टुमकुर डिस्ट्रिक्ट में कंपेयर करें तो ग्लोबल शाहीन कॉलेज का रिज़ल्ट दी बेस्ट है। 167 बच्चे एग्ज़ाम लिखे थे, उसमें हमारे साइंस में 98% पास हुए हैं बच्चे और कॉमर्स में 95% हुए हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस बार का जो रिज़ल्ट है पूरे कर्नाटक का रिज़ल्ट 11% कम हुआ है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो रिज़ल्ट हमारा आया है काबिल तारीफ़ है और ये हमारे असातिज़ा और बच्चों की मेहनत है। और जैसा कि आपने देखा वहाँ पे माशाअल्लाह हमारे 100+ फर्स्ट क्लास है और 27 कुछ डिस्टिंक्शंस वगैरह है। सो बेहतरीन रिज़ल्ट है, हमको इस बात की बहुत खुशी है। टुमकुर में शायद ही कोई कॉलेज इस तरह का एक अनाउंसमेंट किया है कि कर रहे हैं कि टॉपर का डाल रहे हैं, मगर परसेंटेज कोई कॉलेज में हम लोग को अभी तक देखने में नहीं आया। सो पूरे स्टेट का जब हम कंपेयर करें तो 70% भी नहीं है, 69% है। हमारा 98% साइंस है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। और इसी वक्त पे मैं इस वक्त पर सबको एक बार पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ और बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ और शहरान टुमकुर और सबके लिए ये खुशखबरी है, हमारे कौम के बच्चों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन इंतज़ाम है यहाँ पे। अपने बच्चों को जल्दी से जल्द दाखिला कराएं और इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज से यहाँ पे पढ़ाई होगी। पिछले साल के मुकाबले क्या रिजल्ट बढ़ा है? हाँ, पिछले साल के हमारा 100% था, 2% की घटावट हुई है। वो लाजिमी है क्योंकि इस बार का जो इलेक्शन रिजल्ट एग्जाम करने का अंदाज अलग था, उसके बिना पे जो है ना 2% का डाउन हुआ है। और हम लोग को इस बात की खुशी है कि स्टेट से जो टॉप जहाँ के दूसरे और कॉलेजेस हैं उनको हमने पीछे छोड़ दिया है। तो 98% है और इस साल का जो रिजल्ट गए बार का जो था 100% था, 2% का गिराव हुआ है और पूरे स्टेट का रिजल्ट 11% कम है, तो हमारा 2% कम है। इसमें हम लोग मुतमईन है इंशाल्लाह। जी, आज का प्रोग्राम यह था कि हम लोग जितने हमारे बच्चे टॉप किए हैं उनके लिए एक हौसला अफजाई का प्रोग्राम था। हमारे जनाब हमजा हुसैन साहब जो कमांडेंट और 12 बटालियन के जो एसपी हैं कोरडगेरे में, उनका वो ट्रेनिंग कैंप है, वो आज के चीफ गेस्ट थे। माशाअल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, बच्चों की हौसला अफजाई की और आइंदा चल के क्या क्या प्रोग्राम्स हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में एक लंबी गुफ्तगू हुई और इससे बहुत फ़ायदा हुआ। और साथ साथ और दूसरे स्कूल्स के हेड्स भी आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन अंदाज से एक अच्छा प्रोग्राम हुआ
और हर साल ये हम करते आ रहे हैं। फीस वाइज कैसा है सर शाहीन? देखिए फीस बहुत सारे पेरेंट्स का एक कंप्लेंट है कि उनको इतना लिए, इनको इतना लिए। मैं ये कहता हूँ कि मेरी फीस 1 रुपया भी है, 70,000 भी है साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए 1 रुपया भी है, 40,000 भी है। तो ये हम लोग कोई फिक्स किया हुआ नहीं, गवर्नमेंट का कोई फिक्स फीस नहीं है कि हम खुद माली हालात को देखते हुए पेरेंट्स की हम खुद डिसाइड करते हैं। अगर बच्ची अच्छा पढ़ रही है, 95% या 90% है, माली हालात उनके खस्ता है, तो वो नहीं ऑफर कर सकता, हम लोग उनको 1 रुपये का एडमिशन करते हैं। हमारे यहाँ फीस फिक्स नहीं है, 10,000 भी हो सकती है, 1,000 भी हो सकती है, 70,000 भी हो सकती है। वैसे कॉमर्स के लिए 1 रुपया भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकती है, 40,000 भी हो सकती है। कुछ बच्चे बता रहे थे उनको एक टास्क दिया हुआ है कि फर्स्ट ईयर बीएससी के अंदर वो 90% जो आएगा उसके लिए और डिस्काउंट हो जाएगा। जी इंशाल्लाह, वो ऑलरेडी हम लोग करते आ रहे हैं। 95 के ऊपर जो स्कोर हुआ है उनके लिए हम रियायती करते हैं, बल्कि नए जब फिर री एडमिशन होते हैं, जब भी उनको हम लोग एक बार देखते हैं कि बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है। अभी एक मिसाल मैं देता हूँ, हॉस्पेट के 3 बच्चे हैं, उसमें 2 बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लिए थे। एक बच्ची जो है बेंगलोर में बेस, सुनेंगे आप, बहुत फेमस एक टीचिंग फैकल्टी है बेस, वहाँ पे एडमिशन लिए थे। उस बच्ची का परसेंटेज एसएलसी का जो था 65% था। अभी वो फर्स्ट ईयर पास होकर सेकेंड ईयर के लिए यहाँ पे लाए हैं चेंज ऑफ कॉलेज के लिए, उसका रिजल्ट जो है 51% है। जो बच्ची 60% लेके ग्लोबल शाहीन में दाखिला लिए थे उसका 86% है। तो अंदाजा लगे 26% का इजाफा यहाँ हुआ। बीएस में जाके पौने 2 लाख फीस दे के 1 साल पढ़ाई करके जब वापस आए तो उनका रिजल्ट 14% घट गया। इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है, हमारे असातिज़ा की मेहनत है। इंशाल्लाह हम बहुत बेहतरीन अंदाज से आइंदा साल भी अच्छा रिजल्ट देंगे। Alhamdulillah, today we have conducted felicitated program for toppers of our outgoing second year students. So Alhamdulillah, the students were very happy. It was a situation to motivate those students and to acknowledge their dedication, their hard work, and to support them. And now this is a time for the upcoming 11th standard students, those who have written 10th exam. So for them it's a golden opportunity. So as early as possible you can come and register your names. I request the parents of 10 pass out students or who are going to pass a 10th standard this year, I request them to visit our campus from morning 10 a.m. to evening 5 p.m. So you can visit our campus, you can visit our office, you can see the facilities which we provide, you can see the environment which is very supportive to the learners. So we have a dedicated team of faculty members who are available from morning till evening, and also we have hostel facility with food and accommodation, and also we conduct study hours during the evening time from evening 6 p.m. to 10:30 p.m. In between we provide some time for namaz break will be there, and also dinner time will be there. So effective study hours will happen from morning from the evening 6 p.m. to 10:30 p.m. And also our students hostelites, they just get up early in the morning by 5:30. So they will have salah after namaz. Again they will come. They used to sit for study. So Alhamdulillah, it's a great opportunity for the parents and the students, those who want to excel in the education field, and those who are interested in medical or engineering and who want to pursue PU, that is class 11 and 12. Very good opportunity. I request the parents and the students, please visit our campus. That's Global Shahin College. It's near Bhimsandra Eidgah, Tumkur. Please, and you can contact the details given. Wish you all the best. Thank you all.